afternoon to all. Today is indeed a day where knowledge will shine in its full brilliance and intellect will cross new horizons. I'm your host, Ratisha Sapre. On behalf of the entire Vidya Prabodhini College fraternity, I welcome you all to the technical session of the two-day national seminar on Sri Ram Sahitya. Today we are honored to have with us an eminent personality, Shri Lakshman Pitre Sir, as the chair of this technical session. Shri Lakshman Pitre is a prolific writer. His contribution to Marathi theatre include plays. He has also authored several historical and poetic works. His articles on culture and philosophy have been published in esteemed newspapers like Tarun Bharat and Gomantak. He has also penned popular columns showcasing his vast literary prowess across various themes and formats. In addition to his literary contributions, he has written several timely articles for various periodicals. He has delivered around 50 speeches in Konkani on Sanskrit and Marathi literature on All India Radio. His works have been recognized across Maharashtra, where he has been invited to speak on numerous prestigious platforms. He has actively participated in numerous literary conferences, poetic readings, and dramatic performances. It is a privilege for all of us gathered here to welcome such a widely acclaimed personality. So on behalf of one and all present here, I welcome you, sir. Now, I would like to request Rajendra Bhobe, sir, to kindly present a memento to Pitre, sir. Thank you, sir. We would now start with the paper presentations. Sri Ram Sahitya, with its rich literary heritage, holds immense cultural and historical significance. The sub-themes of the seminar will cover different aspects of Sri Ram's story, highlighting its potential in national security, war strategy, socio-political aspects, and geographical and scientific aspects. I request the speakers to please limit their respective presentations to 5 minutes respectively due to the paucity of time. I would now request the first paper presenter for the session, Dr. Rangita Radhakrishnanan, Assistant Professor and Head, Department of Psychology, Dr. MGR Janki College of Arts and Science, to present her paper titled as Integrating Herbert's Two-Factor Theory with the Principles of Ramarajya, a Model for Modern Governance. Over to you, ma'am. Good evening. So this paper is connecting a theory which is very commonly quoted in the area of organizational behavior and human resource management, which is Herzberg two-factor theory, with the principles of Ramarajya, because Ramarajya is generally considered as the ideal governance system. So what were the principles according to Herzberg's theory which were used in Ramarajya? So that is what the paper is all about. So governance means to steer or rule. So Ramarajya is a governance model which is used in the Ramayana. So we are trying to find out how this theory can be applied in views of the governance which was done by Sri Ram.
So Herzberg's theory says that there are two categories of factors which are required for a person to be happy in a workplace or in a community. So it is the hygiene factors which are just there to prevent dissatisfaction. Like if it is in an organizational setup, it would be the salary or the work conditions. And that is not just enough for a person to be happy. For a person to sustain in the workplace or in a community, the person also needs to have motivators which would inspire better performance, which includes recognition, responsibility, and also here the whole idea is how this theory can be applied to governance, which is how we can steer a larger community. So Ramarajya is said to be the ideal governance system where there was justice, prosperity, and ethics. So Rama's leadership, if you see, had all the factors of duty, empathy, and respect for everybody. So, and these, the whole paper was focused on how we can identify which are the factors which can be clubbed under the hygiene factors and which can be clubbed under the motivation factors. So the hygiene factors, if you see, the first one is social justice and law enforcement. So here, if you see, when Rama was compelled to exile Sita, he wanted to uphold the faith of the people. So even though it was on a personal cost, he made it sure that there was social justice which was prevailing in that particular situation. And then there was economic stability. There is many literature which says that there was no poverty or hunger. There was fair distribution of resources. And then there was law and order. Even when there was for divine entities, when Lord Varuna he didn't listen when he wanted to cross the ocean. There also Rama raised his voice, and he wanted the laws to be strict, whoever it was. And there was transparency. Whatever the citizens wanted to know or whatever they wanted to clear, he never hid anything from his citizens, and he had openness in his decision making. And then the citizens also had the assurance that they were treated and governed with justice. And there was lack of suffering or any kind of disease, which means that there was a lot of focus on public health as well. So these can be brought under the hygiene factors, which are you can say the bare minimum which any citizen would expect from a ruler. Then you have the motivators, which are the intrinsic factors that enhance motivation and societal productivity. So the first one is duty and responsibility. So Rama adhered to dharma irrespective of what it was. Like he went for the 14 years of exile. There was no hesitation. So when the ruler himself is open to taking any decision, even if it is not so comfortable or it was totally against what they want to do, then the citizens themselves feel that yes, we are the citizens themselves, they feel that they have to take care of their duty and their responsibilities. And then the second one was the respect for elders and tradition. So he had high reverence for his father. So even when there was an instance where his father's command led to a lot of personal loss, still he followed it without any hesitation. So this in turn motivated the citizens of the country, the place also, to make sure that they had a lot of reverence to the people around them or the elders. Then self-actualization, he was an epitome of selfless leadership, where he helped Sugriva and many more. Then compassion. So we know the story of Shabari, where he never thought about. He had a lot of compassion. He didn't behave like a king, and discrimination was not there to anybody. So which means that there was a lot of empathy that he had towards all his people. And then loyalty, he used to show a lot of loyalty towards his wife or his brother, or there was a lot of commitment that he showed in his relationships. And then the next one is leadership, where he had strategic insights and he had a calm and composed nature. And even he had a group of vanaras who were working under him. So even an untrained army was able to work under his guidance. So that showed how strategic his leadership was. So it's all about how Ramarajya was a balanced approach. So it had both hygiene and motivating factors. So and it can be applied in today's context also, where we can provide a holistic framework for modern governance. So we can the implications would be, we can learn from this, and we should make sure that any leader, let it be an organization or let it be a
country or whatever it is, we should make sure that there is an integration of both the hygiene and the motivation factors. It should be a balanced approach. We should make sure that there is citizen satisfaction, there is societal well-being, and this can be applied in public administration to create harmony and to improve the productivity of all the people involved. Thank you. Thank you, ma'am. That was indeed a very value-adding talk. Moving on to the next paper presenter, I would now like to request Sumedha Thakur, student from Goa University, to present her paper titled as Shriram Sahitya. Over to you, ma'am. श्रीरामांना प्रथम वंदन करते आणि त्यांचे अनुज बसलेत त्यांनाही वंदन. माझ्या शोधलेखाचा विषय श्रीवाङ्मयम् आश्रित्य कौटुम्बिकमूल्यानां समर्थत्वस्य च अध्ययनम् इति अस्ति. तुम्हाला वाटलं असेल आकाशवाणी होते. परत पुन्हा तुम्हाला सर्वांना मी नमस्कार करते, वंदन करते. अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्. अस्माकं भारतीयसंस्कृतेः एषा महत्त्वपूर्णसङ्कल्पना अस्ति. अत्र कुटुम्बस्य समाजस्य विचारः सर्वतोपरि अस्ति, न तु वैयक्तिकः भावः. अस्माकं सभ्यता विश्वस्य प्राचीनतमा सभ्यता अस्ति इति सर्वे जानन्ति. अस्माकं सभ्यतायाः मूलाधार अस्ति अस्माकं नीतिमूल्यैः पोषिता कौटुम्बिकव्यवस्था. संस्कृतिः, इतिहासः, भाषा च अपि सभ्यताः भागाः सन्ति. श्रीरामः कथम् आसीत्? कविमहर्षिः वाल्मीकिः महर्षिं नारदम् आरम्भे एव पृच्छति, कोन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान्, धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः, चारित्रेण च को युक्तः, सर्वभूतेषु को हितः, विद्वान् कः, कः समर्थश्च, कश्चैकप्रियदर्शनः. अस्मिन् लोके साम्प्रतं गुणवान् वीर्यवान् धर्मज्ञः सत्यवाक्यः दृढव्रतः चारित्र्ययुक्तः सर्वभूतहितः विद्वान् समर्थः सर्वप्रियदर्शनः च कः अस्ति? तदा महर्षिः नारदः वदति यत् एतान् सर्वान् गुणान् एकस्मिन् मनुष्ये एव प्राप्तुं तु न शक्यते, किन्तु एकः अस्ति, तं सर्वे श्रीराम इति नाम्ना ज्ञायन्ते. न केवलम् एते गुणाः, परन्तु तस्मिन् इतोपि बहवः उत्तमाः गुणाः सन्ति. अतः एव सः जनानाम् पुरुषोत्तमः श्रीरामः अस्ति. श्रीरामः महाराज्ञः दशरथस्य सर्वेषु चत्वारेषु प्रियः पुत्रः आसीत्. सः शान्तः, आज्ञाधारकः, सत्यप्रियः, कर्तव्यतत्परः, प्रियभाषिणः च आसीत्. तस्य तिस्रमातरः आसन्. रामः ताः सर्वाः समानम् एव पश्यति स्म. कदाचित् सः स्वस्य जनन्या अपेक्षया कैकेय्याम् अधिकं स्नेहं करोति स्म. यदा मन्थरा कैकेयीं दत्तवरेण रामं वनं प्रेषयतु इति उक्तवती, तदा क्रोधिता सा कैकेयी ताम् अवदत्, भवती कथं वा एतद् वक्तुं शक्नोति? मूर्खा एव भवती किमर्थं वदति? रामः भरतः इव मम प्रियः अस्ति. सः कौसल्यायाः परं मयि स्नीयति. एतस्मात् उदाहरणात् वयं ज्ञातुं शक्नुमः यत् श्रीरामः कथं मातॄणाम् आदरं करोति स्म. वाल्मीकेः रामायणम् अद्यापि आधुनिकसमाजस्य मार्गदर्शकं वर्तते. आदर्शकुटुम्बः कथं भवेत् इति उदाहरणानि रामायणे दत्तानि सन्ति. अद्यतनभौतिकवादीसभ्यतायां परिवाराः सम्पूर्णे विश्वे एकीकृताः, परन्तु भारते वयं किञ्चित् पर्यन्तम् एतां व्यवस्थाम् अक्षुण्णं स्थापयितुं सफलाः स्मः. तस्य कारणं च अस्माकम् इतिहासे एव अस्ति. रामदण्डस्य अनन्तरं लक्ष्मणः रामं तस्य दिनचर्यायां साहाय्यं कर्तुं रामेण सहितं गतवान्. यदा आवश्यकता आसीत् तदा तस्य रक्षणम् अपि कृतवान्. रामः अपि तस्मिन् बहु स्नेहः करोति स्म. यदा लक्ष्मणः पत्रेभ्यः लघुकुटीरं निर्मितवान् तदा रामः एतावत् आनन्दितः अभवत्. सः लक्ष्मणम् उक्तवान्, अहो त्वं मया सह छायारूपेण अस्ति. भ्राता भवता मां विस्मृतं यत् अहं पित्रा रहितः अस्मि.
उभयमपि परस्परं प्रति कर्तव्यं पालयति स्म। सीता अपि जानाति स्म तयोः प्रेमबन्धः कियत् दृढः अस्ति। यदा रावणः सीतां वञ्चनेन अपहृतवान्, रामलक्ष्मणौ वने ताम् अन्वेष्टुं प्रवृत्तौ, तदा रामः केचन आभूषणानि प्राप्तवान्। राघवस्य तादृशं शोकं दुःखं चासीत्, सः चिन्तनस्थितौ एव नासीत्। यदा रामः लक्ष्मणं पृष्टवान्, तदा लक्ष्मणः उक्तवान्, अलङ्कारस्य विषये अहं न जानामि, ते मम अपरिचिताः सन्ति, किन्तु एते नुपुराः मातृसीतायाः सन्ति, ते मम परिचिताः सन्ति। यदा अहं तां नमस्कृतवान्, तदा अहं तान् प्रतिदिनं तस्याः पादयोः पश्यन् आसीत्। तथैव सीतारामयोः कठिनप्रसङ्गे परस्परं बलं सहचारेण दोषाः त्यक्त्वा तस्य गुणस्य संवर्धनम् इति गुणाः अस्मान् प्रेरणादायिनः भवन्ति। रामायणे सीता तस्याः पतिं पूर्णतया ज्ञातवती। तस्याः जीवने रामस्य स्थानं तथा रामस्य जीवने तस्याः स्थानमपि सा ज्ञातवती। सा प्रेम्णा गर्वेण च अनुसूया मातरम् उक्तवती, किं पुनर्यो गुणश्लाघ्यः सानुक्रोशो जितेन्द्रियः स्थिरानुरागो धर्मात्मा मातृवत् पितृवत् प्रियः। सारांशः एतदस्ति। रामायणस्य पाठः न केवलं गहनाः जीवनोपदेशाः, अपि तु अनन्तप्रज्ञायाः कोशः अपि सन्ति, यः पीढ्यपर्यन्तं प्रेष्यते। तथा च जनानां जीवनयात्रायां प्रेरणां मार्गदर्शनं च ददाति। अस्मत् महाकाव्यकथा जीवनस्य विविधपक्षेषु कालातीतं प्रज्ञां यच्छन्ति, अनमूलानाम् अन्तर्दृष्टीनां दानं च कुर्वन्ति। रामायणस्य एते गहनाः पाठाः आत्मसात् कृत्य वयम् उत्तमाः व्यक्तयः भवितुं प्रयत्नं कुर्मः। सद्गुणेन आर्जवेन करुणया च जीवनं यापयित्वा समाजाय सकारात्मकं योगदानं दद्मः। धन्यवादः। Thank you, ma'am, for enlightening us with your knowledge. Moving on to the next paper presenter, I would now like to request Dr. Ranjita Parab, Assistant Professor in Hindi, Sant Soirobanath College, Ambiye, Government College, Pernem, to present a paper titled as Shri Ram और राव काव्य में प्रासंगिकता. Over to you, ma'am. नमस्कार। आदरणीय सर और सभागार में उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। मैंने आज जो विषय लिया है वह है श्री राम और राम साहित्य में प्रासंगिकता। इसका अर्थ है कि मतलब आज जो राम काव्य है कि आज के युग में कैसे प्रासंगिक है, मतलब आज भी वह अपने आज समाज को किस तरह से उपदेश जो है वह दे रहा है। तो मैंने छोटा सा पेपर लिखा है, वह मैं पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। पूरे विश्व में भगवान श्री राम निर्विवाद रूप से जो है वह आदर्श माने गए हैं। ऐसे आदर्श जो सर्वोच्च शिखर पर है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि श्री राम जो है वह मतलब पूजनीय है। श्री राम जो हिंदू महाकाव्य रामायण के एक केंद्रीय पात्र है और अनेक काव्यों में जो है वह उनका चित्रण हुआ है। जैसे हनुमान नाटक है, रामायण महानाटक है, अवध विलास है, आदि बहुत सारे काव्य जो है वह उसी तरह से तुलसीदास जी लिखित रामचरितमानस है, रामलला नहचू है, ऐसे बहुत सारे काव्य है जहाँ पर श्री राम जी का चित्रण जो है वह हुआ है। तो लेकिन आज जो है वह श्री राम का काव्य प्रासंगिक नज़र आता है। आज युग बीत गए लेकिन आज भी यह काव्य समाज का योग्य प्रदर्शन कर रहा है। राम काव्य के माध्यम से तब कही हुई बातें आज भी बहुत सारे लोग जो है उससे सीख ले सकते हैं। आज हम देखते हैं कि मनुष्य आधुनिक बन रहा है, वैज्ञानिकता की ओर बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन प्रगति के रास्ते पर अग्रसर है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं हम हमारे आदर्शों को जो है वह भूलते जा रहे हैं, नीति के रास्ते से भटक रहे हैं। इस युग में संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं, परिवार छोटे होते
जा रहे हैं। हम अपने पराये का अंतर भूल गए हैं। भाई भाई एक दूसरे के दुश्मन बन रहे हैं। बच्चे माता पिता का सम्मान करना भूल गए हैं। आज हम आधुनिकता के उच्च शिखर पर तो पहुंच रहे हैं, लेकिन जीवन में हमारे जो मुख्य मूल्य है, हमारे जो कर्तव्य है, हमारे संस्कार, उन्हीं ऐसा लगता है कि उनको कहीं हमने अंधेरे गलियों में छोड़ दिया है। वह उसके बाद जो है वह पहले हम संयुक्त परिवार में रहते थे। सभी अपने सुख दुख एक दूसरे से बांटा करते थे। आपस में प्रेम की भावना रहती थी। दूसरों का दुख अपना सा लगता था। लेकिन आज मनुष्य भावना विहीन बनता जा रहा है, कहीं कठोर, कहीं निर्मम नीति के रास्ते से गिरता हुआ। समाज ही नहीं, आज समाज की स्थितियां भी बदल रही है। हम शहरीकरण, बाजारीकरण की भाग दौड़ में कहीं गुम होते जा रहे हैं। लेकिन यही राम काव्य जो है वह हमें, अगर कोई इससे अगर सच राह दिखा सकता है तो राम काव्य है, क्योंकि आज भी राम काव्य जो है वह समाज को सीख दे रहा है। वह आज भी हमें प्रासंगिक लगता है कि जो त्रेता युग में राम हुए थे उनके बारे में बहुत सारा जो है वह साहित्य लिखा है। तो ऐसा लगता है कि आज ही वह लिखा गया या आज के समाज के लिए ही लिखा गया है और आगे आने वाली पीढ़ी को भी वह संदेश देता रहेगा। श्री राम या उनका साहित्य जितना प्रासंगिक है, आज भी वर्तमान समाज को जो है वह नीति, सत्य या जीवन के आदर्शों का पाठ पढ़ाने में सक्षम है, क्योंकि उनकी कार्य प्रणाली का ही दूसरा नाम प्रजातंत्र है। उनकी कार्य प्रणाली को समझने के लिए पहले हमें श्री राम को समझने की आवश्यकता है। श्री राम यानी न्याय, आदर्श, संस्कृति, धर्म, राष्ट्रीयता और पराक्रम का दूसरा नाम है। अगर तुलसीदास जी के शब्दों में अगर कहा जाए तो राम राज्य में कोई भी दुखी दीन ऐसे नहीं था, क्योंकि राम राज्य ना ही दरिद्र को हो, दुखी न दीना, ना ही कोई अबुद न लच्छ नहीं ना। मतलब सभी जो है वह सुख से, समाधान से जो है वह राम राज्य में रहा करते थे। ऐसा तुलसीदास अपने काव्य में वर्णन करते हैं। लेकिन आज हमें और हमारी शासन व्यवस्था को यह समझने की जरूरत है कि राजा वह होता है जो स्वार्थ से परे हो। अपने से पहले वह अपने प्रजा के सुख दुख को समझे। श्री राम ने अपने लिए वह कभी कुछ नहीं चाहा। वह सर्वोत्तर जो है वह परोपकारी के रूप में जो है वह चित्रित है, और जो कि सच है, क्योंकि जब उनके पिता ने वनवास के लिए जाने के लिए कहा था तब उन्होंने मतलब कुछ नहीं कहा, लेकिन आज जो है वह, और 14 साल के वनवास के लिए चले गए थे, लेकिन आज जो है वह बच्चे माँ पिता की नहीं सुन रहे हैं। बहुत सारे आज जो है वह बच्चे अपने पिता या माता को जो है वह वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं। यहाँ तक कि आज जो हमारे संस्कार है, जो हमें मूल रूप से मिले हुए हैं, वो हम कहीं भूलते जा रहे हैं। लेकिन आज जो है हमें समझने की ज़रूरत है कि भगवान राम ने जो है बहुत कुछ अपने साहित्य के अपने चरित्र के माध्यम से जो है वह समाज को सिखाया है। वहीं पर जो है हम आज भाई एक दूसरे से लड़ते हुए दिखाई देते हैं। वही हम उदाहरण ले सकते हैं लक्ष्मण का या भरत का, जो अपने भाई कि बिना स्वार्थ जो है वह उनके साथ चले गए थे। या भरत जो है वह उन्होंने अपनी राजगद्दी पर जो है वह श्री राम जी की पादुकाएं रखी थी। तो इस तरह का जो है वह हमें राम काव्य का चित्रण मिलता है, लेकिन आज वह कहीं तो हम भूलते जा रहे हैं। इसीलिए राम काव्य आज प्रासंगिक है, क्योंकि आज हमें वो सीख दे रहा है कि किस तरह से हमें अपने रिश्तों को निभाना है। अगर भाई हो तो लक्ष्मण जैसा, या पत्नी हो तो सीता जैसी, या अगर आप कहीं सेवा कर रहे हो तो वह हनुमान जैसी। तो इस तरह से जो है वह कह सकते हैं हम कि राम काव्य जो है वह प्रासंगिक है आज के युग में। बहुत कम समय है, इसलिए बहुत जल्दी समेटना पड़ रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आयोजकों ने जो है वह मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you, ma'am. It was indeed a very unique and enlightening perspective.
All the paper presentations were indeed a piece of invaluable research. I would now like to take the opportunity to invite the chair of this session, Shri Lakshman Pitre sir, to enlighten the audience with his worthy words. शारदा शारदाम्भूज वदना वदनाम्भुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्धिं क्रियात्। शापवाक्येन प्रारम्भं करोमि। मा निषाद प्रतिष्ठान त्वामगमशाश्वती समाः यत् क्रौञ्च मिथुनादेकम् अवधिः काममोहितम्। एतद् वाक्यं मम कृते शापवाक्यं नास्ति, रामस्त्वि परं वाक्यमस्ति। हे मा निषाद त्वं शाश्वती समाः प्रतिष्ठाङ्गमः आगमः यत् क्रौञ्चमिथुनादेकं, यत् अत्र क्रौञ्चमिथुनं रावणं बन्धु इति क्रौञ्चमिथुनं, तत्र मिथुनात् एकः काममोहितः, अवधिः काममोहितं, काममोहितं रावणं तम् अवधिः, अतः शाश्वती समाः प्रतिष्ठां प्राप्नोति। ते स्तुतिपरं वाक्यं सञ्जातम्। एतेन प्रारम्भं करोमि। संस्कृतभाषा वक्तमासीत्, किन्तु यद् मया लिखितं तत् हिन्दीभाषायाम् एव लिखितम्, अतः तस्यामेव भाषायां किमपि वदामि। अस्य अद्य शोधपत्रिका पठिता, तेषां सारांशं किं कथनीयम् इति न जानामि। अहं न तन्त्रमार्गीयः, तन्त्रे कृते यत् कथितं तस्य वर्णनं कर्तुं न शक्नोमि। राम के बारे में अपनी विद्यार्थियों ने भावनाएं व्यक्त की और उससे क्या बोध लेना है ये भी बता दिया। वो प्रशंसनीय है, उनसे ही बड़े वक्ता बन सकते हैं बाद में, इसी में आशा है। तो मैं क्या कहता हूँ, राम के बारे में संस्कृत साहित्य में राम कैसे दिखाया गया है इसके बारे में बताऊँगा। जो कथा वाल्मीकि रामायण, उसके बारे में तो सब लोगों ने बता दिया है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। अगर कुछ बोलूँ तो पुनरुक्ति हो जाएगी, तो क्षमा की जाए, क्योंकि राम वही है, उसका कथन भी उसका चरित्र भी वही है। हम अपनी अपनी दृष्टिकोण से वो देखते हैं। तो मेरा एक छोटा सा पेपर है, वो पढ़ लूँगा। अभी टाइम मिल गया है कि इनका थोड़े काल में हो गया, इसलिए भारतीय संस्कृति में युगायुग समष्टि को मार्गदर्शन करने वाले दीपस्तंभवत जो विभूतियाँ हुई हैं, उनमें से एक है श्री राम प्रभु। इक्ष्वाकु कुलजय राजा अपने अंगभूत लोकोत्तर गुणों से ईश्वर का 7वां अवतार माना गया है। आत्मान मानुषम मने वो भी मान्य करता है, फिर भी वो दैवी है, क्योंकि यद यद विभूतिमत् सत्वम श्रीमत् ऊर्जितमेव वा तत्तदेवागच्छत्वम मम तेजांश संभव ऐसा कहा गया है। तो मानव में भी ऐसे लोकोत्तर गुण जब दिखते हैं, तब उन्हें हम देवस्वरूप मानते हैं, अवतार मानते हैं ईश्वर का। इसे राम एक ईश्वर था, उसमें मानवीय गुण थे और दैवी गुण भी थे। ही वॉज डिवाइनली ह्यूमन एंड ह्यूमनली डिवाइन, ऐसा उसका वर्णन किया जा सकता है। संस्कृताश्रिता ऐसा कहा गया है। हम अपनी संस्कृति के आधारभूत सब ग्रंथ संस्कृत में ये सब जानते हैं। उनमें से एक आदि काव्य रामायण, वाल्मीकि रामायण, जिसमें रामकथा प्रथम निबद्ध हुई। इस आर्ष महाकाव्य से प्रेरणा लेकर असंख्य संस्कृत साहित्य ग्रंथों में कवियों ने रामकथा गाई है। वाल्मीकि रामायण के साथ अन्य ग्रंथों में भी राम और रामकथा कैसे चित्रित है, ये संक्षेप में हम देखेंगे। वाल्मीकि रामायण में दिखने वाला राम आदर्श पुत्र है, लोकाभिराम है, सबको अच्छा लगने वाला, आदर्श भ्राता, आदर्श पति, आदर्श शासक है। उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली था, वह सुंदर निरामय था। उसके स्कंध और सीना चौड़ा, ये उसमें दिया गया वर्णन है। तेजस्वी नेत्र और सावणी कांति पर अद्भुत तेज था। यौवन प्राप्ति पर उसका व्यक्तित्व और भी निखर गया। अपने शौर्य से और सौजन्य से प्रजाजन में वो प्रिय था। धनुर्वेद और देव मानव के सब शस्त्रास्त्रों के बारे में पूरी जानकारी रखता था। सेना संचालन कर सकता था और युद्ध में अजिंक्य था। सज्जन की रक्षा और दुर्जनों का नाश, यह क्षात्र धर्म पालन उसका व्रत था। धर्म, अर्थ और काम इन 3 पुरुषार्थों के पालन में वह संतुलन रखता था।
भोग और त्याग कब करना ये उसे अच्छी तरह से मालूम था। उसका प्रसाद और क्रोध भी कभी निरुद्देश्य नहीं होता था। छोटा सा भी उपकार वह कभी नहीं भूलता था। उसकी प्रज्ञा, प्रतिभा और धारणा अप्रतिम थी। वशिष्ठ ऋषि जैसे श्रेष्ठ गुरु से उसने ज्ञान प्राप्त किया था। वह अपनी भावनाओं से कर्तव्य कोई प्राधान्य देने वाला था, इसलिए ही उसे मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया था। अपनों से बड़ों को भी उपदेश वो दे सकता था। राम के वियोग की कल्पना से दशरथ जब हताश हो जाता है तो राम ही उसका सांत्वन करता है। वो कहता है तुम हजारों वर्ष राज्य करो, मैं तो अरण्य भी सुख से रहूँगा। भवान वर्ष सहस्राणि पृथिव्या नृपते पति अहंतु अरण्ये वत्स्यामि न मे राज्यस्य कांक्षिता। सांत्वना देने वाले वशिष्ठ गुरु को भी विवेक की बातें सुनाता है। शरण आए विभीषण को वह अभय देता है। विरोधी साथियों से वह कहता है शरणागत को अभय देना तो मेरा धर्म है। अगर रावण भी कल शरण आ जाए तो मैं उसे अभय दे दूंगा। आनयेनम हरिश्रेष्ठ दत्तमस्या भयम मया विभीषणो वा सुग्रीवो यदि वा रावण स्वयं। कहता है उसका व्यक्तित्व बिल्कुल पारदर्शी था। मानव गुण कैसे थे ये दिखाता हूँ। सीता के हरण के बाद अतीव दुख करने वाला राम, वृक्षों को भी आलिंगन देने वाला राम, जब रावण वध के बाद सीता सामने आती तो कहता है, अभी उसका उल्लेख भी हुआ है, इतने दिन शत्रु के पास रहने से तुम्हारे बारे में मेरे मन में शक पैदा हुआ है। उच्च रघुकुल का नाम बताने वाला मैं तेरा स्वीकार नहीं कर सकता। तुम कहीं भी जा सकती हो, किसी के साथ भी रह सकती हो। देखो यदि आधुनिक काल में पति जैसे कह सकता है उसी तरह की बातें वो करता है। यह राज्याभिषेक तय होने पर उसे खुशी मिलती है, लेकिन वनवास की बात सुनकर खिन्न भी होता है। धीरोदात्त से वह कर्तव्य निभाता है, किंतु वनवास जाने की पूर्व रात्रि वो सीता से कहता है आज कैकेयी माता बहुत प्रसन्न होगी, आज सबसे खुश कोई होगा तो भरत होगा, क्योंकि पत्नी के साथ वह आराम से राज्य करेगा। दैवी गुणों के साथ उसमें मानवीय गुण भी थे। यह बात इन घटनाओं से स्पष्ट होती है। वाली वध के बाद सुग्रीव विलास में इसका उल्लेख हुआ है। अभी विलास मग्न रहता है, उसके काम के दुर्लक्ष्य करता है। तब क्रुद्ध होकर लक्ष्मण से उसको संदेश भेजता है, न स संकुचितः पंथाः येन वाली हतोगतः समय तिष्ठ सुग्रीव माँ वाली पथमनुगाः एक एव रणे वाली शरेण निहतो मया त्वांतु सत्यात अतिक्रांतम हनिष्यामि सबांधवम। बांधवों के साथ तुम्हारा नाश कर दूंगा अगर तुम्हें वचन तोड़ दिया तो। सुग्रीव काम में लग गए, कहने की कुछ ज़रूरत नहीं है। राम के 14 वर्ष वनवास जाने के बाद संशय रखने वाली कैकेयी सो कहता है आश्वसरो माताश्री, मैं वचन पालन की मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। राम वचन कभी नहीं तोड़ता। रामो धीर नाभिभाषते, ऐसा रहता है। भरत राजा बनेगा यह बात सहन न होकर लक्ष्मण उसका वध करने के लिए तैयार हो जाता है। तब राम उसे समझाता है, यद्रव्यम बांधवानांच मित्राणांच क्षय भवेत् नाहम तत्प्रतिगृह्णामि भक्षान वृषकृतानिव। विष भरा अन्न जैसे उसको द्रव्य को मैं स्वीकार नहीं करूँगा, उसका वध मत करना, ये कह देता है। वह आदर्श मित्र था। सुग्रीव गुह के साथ उसने अच्छी तरह अपनी दोस्ती निभाई। प्रजा के लिए प्राणप्रिय पत्नी का भी त्याग किया। ये विवाद्य मुद्दा है, लेकिन फिर भी वो प्रजा के लिए उसने किया। प्रजा वत्सलता इससे दिखती है। उसकी धर्मनिष्ठा है कि उसके शत्रु भी स्तुति करते हैं। राम विग्रहवान धर्मा, ये वाक्य तो 4 बार आ गया है, लेकिन किसने कहा है? ये किसी ने नहीं कहा, ये मारीच ने कहा है। जब मारीच के पास रावण जाता है अपनी योजना लेकर, तो मारीच कहता है राम मूर्तिमान धर्म है और सत्य पराक्रम है, उससे कोई नहीं जीत सकता, तुम भी इस मोह में मुझे मत धकेलो। वो कहता है धर्म पालन करता है, धारणा धर्म इत्याहो। धर्म वो है जो समाज को धारण करता है, इकट्ठा करता है, यानी नीति तत्व जो है वही सचमुच का धर्म है। और राम तो नीति की मूर्ति था, इसलिए रामा विग्रहवान धर्म, इस तरह का धर्म था राम। राम का चरित्र तो नीति का वस्तुपाठ है, इसलिए राम विग्रहवान धर्मासा। मारीच उसका शत्रु कहता, शत्रु भी उसकी स्तुति करते थे। राम आत्मविश्वास बेजोड़ था। रावण थक जाता है लड़ते लड़ते, तो राम कहता है अरे रावण आराम से घर जाओ और तैयार होकर कल आना, कल फिर लड़ेंगे। तो कितना आत्मविश्वास देखो। उसको मार सकता था लेकिन नहीं मारता, जाओ घर जाकर तैयार होकर कल आना, तब मार, अब लड़ाएंगे, अरे मार दूंगा तो। उसने रावण का वध जरूर किया, लेकिन उसकी अवहेलना कभी नहीं की। उसके शौर्य के बारे में उसे आदर था। मरणोपरांत विभीषण
उसकी अंत्यक्रिया के लिए तैयार नहीं था। फिर राम उसके कहता है ऐसा नहीं करना, मर गया ये मरा, वैर भी समाप्त हो गया, मराणन ताने वैरानी, ऐसा कहता है और उद्युक्त करता है उसकी अंत्येष्टि करने के लिए। लक्ष्मण को मोह हो जाता है, अभी लंका में ठहरे आराम से, अयोध्या क्यों जाना। तो राम कहता है अभी स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मनिश्चय स्वर्गात अभी गरीयसी, कथा देता है। और लक्ष्मण राम लौट जाते हैं सुग्रीव को राजा बना के। मुझे याद आती है कृष्ण की, जब कंस की हत्या की, कंस का वध किया, तब खुद राजा नहीं बनता, बन सकता था, लेकिन उग्रसेन को बुलाकर राजा बनाया। उसको राज्य का मोह नहीं था, लंका का राज कायदे से उसको मिलता, राम उसका राजा हो गया ना, वो समाविष्ट कर सकता है अयोध्या की राज्य में, नहीं किया, सुग्रीव को राजा बनाया। हाँ विभीषण को राजा बनाया उसने। तो साम्य देखिए आप, राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम उपाधि को सार्थ किया। माँ, पिता, बंधु, भृत्य, मित्र, पिता, इन सबके प्रति उन्हें मर्यादापूर्वक अपना कर्तव्य पूरा किया। वाल्मीकि रामायण के इस नायक ने उत्तरवर्ती संस्कृत साहित्यिकों को प्रभावित किया और उनके साहित्य में वह विभिन्न रूपों में प्रकट हुआ है। राम कथा में भी कई परिवर्तन हुए। उपनिषद, पुराण, महाकाव्य, नाटक, इन साहित्य प्रकारों में वह कैसे चित्रित हुआ है और राम कथा में कैसे मोड़ आए हैं, यह देखना बहुत रोचक और उद्बोधक होगा। संक्षेप में हम वो देखेंगे। अभी उपनिषद में 2 उपनिषद राम के ऊपर है, राम पूर्वतापिनी और रामोत्तर तापिनी। राम का चरित्र नहीं है, लेकिन राम के बारे में क्या वहाँ का है संक्षेप में देखेंगे। राम पूर्वतापिनी में राम शब्द के अनेक व्युत्पत्तियाँ दी हैं। राति राजते व मयि स्थितस्सन रामः, यानी जो दान करता है, प्रकाशित होता है या पृथ्वी पर रहता है, उसको राम कहते हैं। एक सर्वमान्य व्युत्पत्ति है वहाँ। राक्षस शब्द से रा और मनुष्य शब्द से म लेकर राम बना है, ऐसा भी वहाँ कहा गया है। पाराम परब्रह्म है और मनुष्य रूप में पृथ्वी पर अवतीर्ण है, उसे में अन्य सारे देवताओं का अंतर्भाव होता है। राम मंत्र जड़ और चेतन पूरे जगत के ज्ञान से ओतप्रोत है, उसका प्रभाव अपरंपार है। निरंतर ध्यान से उसके साधक को सब रहस्यों का ज्ञान होता है, ऐसा इस उपनिषद में कहा गया है। रामोत्तर तापिनी उपनिषद के अनुसार राम रामाय नमः, रामचंद्राय नमः, रामभद्राय नमः, ये तारक मंत्र के 3 स्वरूप है, यानी क्रम से ओंकार, तत् और ब्रह्म इनके स्वरूप है। पांचरात्र मत के संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव यहाँ मांडुक्योपनिषद के चतुष्पद ब्रह्म के साथ जोड़े गए हैं। तथा राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, इन चारों का संकर्षण आदि चारों से जोड़ दिखाया है। और रामोपासना और कृष्णोपासना, इसमें अभिन्नता दिखाने का प्रयास किया गया है रामोत्तर तापिनी। इसमें रामकथा हरिवंश पुराण में संक्षिप्त रूप में आती है। राम वनगमन से लेकर रावण वध तक का कथा भाग यहाँ आया है, लेकिन पुत्र कामेष्टि यज्ञ और सीता त्याग, सीता का अयोनिजत्व, इसका यहाँ उल्लेख नहीं है। भागवत पुराण, कूर्म पुराण, वराह पुराण में भी राम कथा है। स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड में सीताहरण और छायारूप सीता का उल्लेख है। पद्म पुराण के सृष्टि खंड में इक्ष्वाकु वर्ण आता है, तो पाताल खंड में रामचरित्र और सीता त्याग वर्णित है। और ये सब जो कहा है तो वाल्मीकि राम के अनुसार है। जो कहाँ भिन्नता होगी वो मैं बता दूंगा। जैन अभी उन्होंने उल्लेख किया कि जैन और बौद्ध धर्म ने राम कथा का स्वीकरण किया और उसमें अपने धर्मानुरूप अनुकूल ऐसे बदल कर दिए। तो यहाँ एक ऐसा उदाहरण संस्कृत में भी है, उसने रावण का उदाहरण दिया और दशरथ का जातक का उल्लेख किया, उसमें है, लेकिन वो संस्कृत में इसलिए मैंने उसका यहाँ संदर्भ नहीं लिया है। संस्कृत में जो राम कथा आती है वो पद्म पुराण है। हरिशेन रविशन क्या है उसका, तो उसमें राम कथा इस तरह बदल गई है कि आप विश्वास नहीं रख सकते। देखा पातालवासी राक्षस राज रत्नश्रवा और कैकसी के 3 पुत्र, रावण, विभीषण, कुंभकर्ण, तथा कन्या थी चंद्रनखा थी, शूर्पणखा नहीं, चंद्रनखा। चंद्रनखा का विवाह खरदूषण से हुआ था। पटनानी मंदोरी के सिवा 5000 रानियाँ थी रावण की, यहाँ कहा गया इसमें। सुग्रीव और वाली विद्याधर थे, रावण वानर नहीं, वो विद्याधर थे, ऐसा कहा गया है। रावण से पराभूत हुए वाली ने वैराग्य प्राप्त होकर उन्हें सुग्रीव को राज्य दे दिया।
ऐसा यहाँ कहा गया है। हनुमान प्रथम रावण का मित्र था और चंद्रनखा कन्या जो अनंग कुसुमा थी उसका पति था। ये वहाँ ब्रह्मचारी नहीं था, अनंग कुसुमा का पति था हनुमान। रावण के लिए उसने वरुण के साथ युद्ध करके भी युद्ध जीता था। दशरथ और जनक की संतति से अपना नाश होगा, यह भविष्य सुनकर रावण ने विभीषण को उनकी हत्या की आज्ञा दी। नारद से ये वार्ता सुनकर उन्होंने अपने पुतले बनाकर रखा दिए, प्रतिकृतियाँ रखी और विभीषण गया, उन प्रतिकृतियों का शिरच्छेद करके वापस आएगा और कहा रावण से, हाँ अपना काम हो गया करके। दशरथ की 4 पत्नियाँ थी, 3 नहीं। कौशल्या, सुमित्रा, उसके साथ एक सुप्रभा नाम की पत्नी यहाँ दिखाई गई है। और कैकेयी के स्वयंवर में जब ये सब जाते हैं, हाथ दाखवता, बोट दाखवता, नहीं ना, ठीक है, नाही दाखवायचे, ठीक आहे। तर सुप्रभा नाम की थी और हां नाही नाही चालून द्या असं म्हटल्यासारखं गृहीत धरतो मी नाही, थोडं जास्त अंत पाहणार नाही, कारण 5:30 वाजून गेलेले आहेत। तर तो क्या कहता हूँ मैं, 5:45 वाजले, सांगा स्वामी 6 वाजले असं म्हटलं तरी चालेल, मग थांबतोय। हे बघा, हे मला थांबायला सांगते, त्याने किती वेळ दिला आम्ही बघा। ठीक आहे, त्यांचं चांगलंच होतं, सार्थकही लागला वेळ, तर माझं आपलं थोडं काही लहान मुलासारखं ऐकून घ्या। तर कैकेयी के उसको आरक्षित रखा, क्या कैकेयी की स्वयंवर में उसने, हाँ उस स्वयंवर में दशरथ को चुना, तो बाकी राजाओं को क्रोध आ गया और उन्हें ललकारा युद्ध के लिए। उस युद्ध में कैकेयी ने सारथ्य किया, तो दशरथ खुश हो गया, 2 वर उनको दे दिए। कैकेयी होशियार थी, उसने वो आरक्षित रखे, रिजर्व रखे, अब नहीं मान लेंगे। फिर भी जब ये 4 रानियों से 4 पुत्र हुए, उनका जब राज्याभिषेक राम का करना था, तब कैकेयी ने मांग लिया भरत को राज्यपाट और राम का वनवास। वो वन में गए, अर्थात परिणाम था, वहाँ बहुत युद्ध किए। और एक मजा है, शंभुक, ये कौन था, शंभुक उनका था। शंभु का वध किसने किया, लक्ष्मण ने किया। यहाँ इस काव्य में शंभु का वध, और शंभु किसका कौन था, चंद्रनखा का पुत्र था। चंद्रनखा के पुत्र शंभु का लक्ष्मण ने वध किया। उसके प्रतिशोध के लिए चंद्रनखा ने पति खरदूषण और भ्राता रावण को भेजा। खरदूषण तो मारे गए, किंतु रावण ने तभी सीता का हरण किया। राम गया, लेकिन सेतु वगैरह कुछ नहीं, विद्याधरों की सेना लेकर आकाश मार्ग से लंका गया और राम पर ने हमला कर दिया। वहाँ उसने विभीषण मिला, अपनी तरह उसको पटा लिया। और रावण का वध लक्ष्मण ने किया, या राम ने नहीं किया है। राम को अलग तरह का दिखाया, राम हिंसा नहीं करता, लक्ष्मण ने वध किया। राम ने मंदोदरी और इंद्रजीत का सांत्वन भी किया, तब उन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ली। मंदोदरी और इंद्रजीत ने जैन धर्म की दीक्षा ली। राम और लक्ष्मण 6 साल लंका में रहे। अयोध्या वापस आने पर उनकी मुलाकात कुलभूषण केवली इस जैन मुनि से हुई। उन्हें उपदेश लिया। भरत था, भरत को भी उपदेश दिया और पूर्व जन्म के बारे में ही बता दिया। भरत को वैराग्य प्राप्त हुआ, वो भी जैन बन गया, दिगंबर दीक्षा जी इस रामायण में। और यह देखकर कैकेयी को भी बहुत दुख पश्चाताप हुआ। कैकेयी भी आर्यिका बन गई। उन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ली और आर्यिका बन गई। जनापवाद के कारण जब राम ने सीता का त्याग किया, तब उसका पालन वज्र जंग राजा ने किया। लव और कुश उनका जन्म पर उनका भी परिपालन किया। वे जब बड़े हुए तो माता पर वो अन्याय देखकर उन्होंने आक्रमण किया अयोध्या पर। उनका पराक्रम देखकर राम को तसल्ली हुई कि यही मेरे पुत्र हैं। उसने सीता को बुलाया, पर फिर भी वो अग्निदेव की कंडीशन रखी, अग्निदेव करो और आओ। उसने अग्निदेव भी किया, लेकिन अग्नि की जगह वह पानी की धाराएं बहने लगी। तो राम को पश्चाताप हुआ। वो बोला, तुम शुद्ध हो, मुझे अभी तसल्ली हो गई, आप राजगृह में आ जाओ। तो उसने मना कर दिया, मैं नहीं आऊँगी। वो भी जैन आर्यिका बन गई। इस तरह सब रामायण के प्रमुख पात्र जैन बन जाते, ऐसा इसमें कहा है। धर्म प्रचार के हेतु राम कथा का में कैसा परिवर्तन हो सकता है, इसके उत्कृष्ट उदाहरण है। राम कथा पर आधारित नाटकों का भाई नाम ले लूँगा, अभी सब उसका स्पष्टीकरण नहीं। राम कथा आधारित नाटकों में से भास्कर नाटक
पूर्ववर्ती हैं, उसके रामकथा पर प्रतिमा और अभिषेक ये 2 नाटक लिखे हैं। दूसरे ख्यात कीर्त नाटककार भोवते के 2 नाटक रामकथा पर है, महावीर चरित्र, उत्तर रामचरित करुण प्रधान प्रसिद्ध नाटक है। मुरारी का अनर्घ राघव है। तदनंतर राजशेखर के बाल रामायण में सीता विवाह से राम राज्याभिषेक तक की कथा है। राम कथा पर और भी बहुत नाटक है। अनंग हर्ष का उदार राघव, दिग्नाग का कुंदमाला, शक्तिभद्र का आचार्य चूड़ामणि, जयदेव का प्रसन्न राघव तथा दामोदर मिश्र का हनुमान नाटक समझ। ये हनुमान नाटक के वैशिष्ट्यपूर्ण नाटक है। ये नाटक है, उसमें एक लेखक नहीं है, इसलिए उसके राम भक्त हनुमान का नाम दिया है। वह एक संकलन है, क्योंकि उसमें तब तक लिखे गए सब राम साहित्य से उत्कृष्ट श्लोक, उत्कृष्ट विचार, इनका समावेश किया गया। 9वीं सदी से 14वीं सदी तक उसमें बढ़ोतरी होती गई है। इसके पश्चिम भारतीय संस्करण में दामोदर मिश्र ने किया, सब बंगाल संस्करण का संकलन मधुसूदन ने किया है। इसकी रचना भरतनाट्य शास्त्र के अनुसार नहीं है, उसमें कुछ नहीं, विष्कम्भ प्रवेश वगैरह कुछ नहीं है, नांदी वगैरह कुछ नहीं है, ऐसा एक एडिशन होता रहा है। राम कथा ने संस्कृत महाकवियों की स्फूर्ति दी है। कालिदास के रघुवंश के 10 से 15 सर्गों तक राम कथा है। कुमारदास के जानी किरण की काव्य में राम जन्म से सीता हरण तक की कथा भाग है। क्षेमेंद्र की रामायण मंजरी की कथा तथा अभिनंद के रामचंद्र महाकाव्य की कथा भी वाल्मीकि रामायण के अनुसार ही है। इनके साथ ही कई सांप्रदायिक रामायण भी बने हैं। उनमें अध्यात्म रामायण, अगस्त्य रामायण, आनंद रामायण, अद्भुत रामायण, तत्व संग्रह रामायण, इन रामायण का समावेश है। उदाहरण के लिए हम 2-3 रामायण लेंगे और अब समाप्ति कर देंगे। अध्यात्म रामायण शिव ने पार्वती से कहा है। इस पर अद्वैत मत के साथ योग मार्ग और तंत्र मार्ग का भी प्रभाव है। यहाँ राम विष्णु का अवतार है और सीता योग माया है। इसमें रामगीता भी है, जिसको राम ने लक्ष्मण को उपदेश जिसमें किया है। इस ग्रंथ पर भागवत पुराण का प्रभाव दिखता है। अगस्त्य रामायण में राजा कुंतल और रानी भानुमती अगले जन्म से दशरथ और कौशल्या है। इसमें विभिन्न कथाएं जो वाल्मीकि रामायण से मेल नहीं खाती हैं, लेकिन उनका मैं अभी उल्लेख नहीं करूँगा। आनंद रामायण यह रसिक संप्रदाय का ग्रंथ है। कथा वाल्मीकि रामायण से थोड़ी अलग है। जैसे इस जन्म में एक पत्नी व्रत रखने वाला जो राम है, उसे ऐसा वर मिल जाता है कि अगले जन्म में बहुत पत्नियाँ मिल जाएंगी, तो कृष्ण जन्म में उसे मिल जाती है। ये उसमें है, श्रृंगार का वर्णन है। इस प्रकार वाल्मीकि के मूल आदि काव्य रामायण की रामकथा आगे चलकर उपनिषद, पुराण, नाटक, महाकाव्यों, सांप्रदायिक रामायण इत्यादि बहुविध साहित्य प्रकारों में विविध रूपों से हमारे सामने आते हैं और उनके अनुसार राम भी अनेक रूपों में हमारे सामने प्रकट होता है। धन्यवाद। पूरा अभी 6 नहीं बजे हैं, 5:45 अभी बज रहे हैं। मेरे साथ देख रहे हैं इसलिए। हाँ था, ठीक, थाले बजाने में कोई पाबंदी नहीं है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ आयोजकों को और आप सबको कि बहुत धैर्य से आपने मेरा भाषण सुना और चेहरे पर भी की मुस्कान कम नहीं होने दी, इसलिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। सारे पेपर जो जिन जिन लोगों ने प्रेजेंट किए यहाँ पर, सभी को धन्यवाद। और हमारे जो पितरे काका हैं, उन्हें भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत धैर्य रखा। दिन भर वो यहाँ पर हैं और फिर भी उत्साह, हाँ बिल्कुल, उत्साह कम नहीं हुआ और अच्छी अच्छी कहानियाँ बताई, नई नई कहानियाँ बताई। तो धन्यवाद।